Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, in yesterday's session, quick recap we'll take. In yesterday's session, some basic methods of string we saw, like case conversion to upper, to lower, right? Then we saw template string, then about searching index of, last index of. Okay, continuing with that only. Few more search functions are there. Like next is search, but it does the searching on the regular expression basis, like index of and last index of. They are just searching one string inside another, isn't it? S1 dot index of S2. So it is just going to search this S2 in S1. If found, returns the position. If not, -1. What this will do, it will check whether that pattern is matching in your string. Pattern means only regular expression. Regular expression means they are strings representing some pattern. Regular expression is a string, but that string is representing some pattern. Okay. Now that pattern can be for many things, like for pattern for a phone number, pattern for a credit card number, pattern for an email. So many patterns you can build. But search will just check whether that pattern is matching anywhere in your string. S1 dot search. That pattern is only called as a regular expression. So it will check whether this pattern is matching anywhere in the string. If it is matching, so where it is matching, it will return the position. And if it doesn't match, obviously -1. But here the search is done on the pattern basis. Patterns can be many, like examples, suppose I'm writing slash and D plus. D represents for a digit. Plus represents one or more occurrences. So D is a digit. Plus means how many occurrences of digit, how many repetitions, one or more. So this is the pattern. Now what it will search, whether this pattern is there anywhere in your S1. Getting? Like in S1, the sentence is like that. I have 10 mangoes, whatever, and dot dot many. So in this, where is this pattern matching? Now this pattern is what? D plus. D means digit. Digit means 0 to 9. 0 to 9, any digit. And any digits, how many repetitions? Repetitions. One or more. So this 10 is matching with this pattern. Is it one or more repetitions of digit? One or more repetitions of digit. So this 10 is matching. So as it is matched, it will return the position. Getting? So I hope example I gave is a D plus. You can build many other patterns like that. Only not for digits. You can build patterns of letters. Then in that only you can give that case ignore. Many other. So pattern building is a separate topic you can consider. Here I'll just give few examples. So searches for a match using a regular expression and returns the index. So in your string, wherever the pattern is matching, it will return the index. And if the pattern doesn't match, obviously -1. Syntax is like that. String dot search regular expression. Few examples I'll give you. See, this is your original string. Here you are giving directly word. Okay, this is pattern only, but that pattern is directly a word. What word? World. So this will work as if like index of only. This is going to work like a index of. So it is just going to search whether world is there in str. Yes, so where it is, that position. But in next case, see, I've given a pattern slash D represents digit. And how many digits? One or more occurrences. Digits, how many occurrences? One or more. Whenever you give pattern, you have to write in this way only. Begin with slash, end with slash. So where is this pattern matching in str? Here, 2024.
So that position it will give. This is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Therefore 12. Okay. Here it is matching the word world, but we are saying these are called switches. Slash के बाद लिखते हैं उसको switches कहते हैं. So this I indicates ignore case. Ignore case meaning insensitive. तो हम लोग ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड, बट वेरएज वो वर्ल्ड का W स्मॉल है एंड स्ट्रिंग में वर्ल्ड का W कैपिटल, फिर भी मैच हो जाएगा. क्यों मैच होगा? क्योंकि आई लिखा है. आई मीन्स इनसेंसिटिव और इग्नोर केस. तो मैच हुआ तो W सिक्स प्लेस पे यहाँ. एंड हियर आई एम ट्राइंग टू मैच XYZ. ठीक है. तो XYZ तो प्रेजेंट ही नहीं है. इट इज गिविंग -1. ऐसे और भी पैटर्न्स आप बिल्ड कर सकते हैं. लाइक नॉट ओनली वन और मोर digits, you can build many more patterns. ठीक है. लाइक लेटर्स के लिए पैटर्न्स है, वॉवल्स के लिए है. आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग में पहला वॉवल किधर है. मीन्स एनी वन अकरेंस ऑफ अ वॉवल. So you can give patterns like that. Okay. पैटर्न्स ये वैलिडेशंस वगैरह के लिए भी यूज होता है. लाइक फोन नंबर वैलिडेट करना है, या यू वांट टू वैलिडेट ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर, काफी चीज है. तो इफ यू वांट टू वैलिडेट दैट, कैन. बस सिंटैक्टिकली ये डबल फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ही आएगा ना? हाँ, वो स्लैश स्लैश में ही लिखना है फॉर आरईज, रेगुलर एक्सप्रेशन. एंड डायरेक्ट कोई वर्ड रहेगा तो उसको भी लिख सकते हो, बट डबल कोट में भी चल जाएगा. नॉर्मल वर्ड भी रहेगा तो भी उसको स्लैश में लिख सकते हो. हेलो वर्ल्ड 2024 सपोज. ठीक है. और एनी अदर सेंटेंस ऑल्सो, लाइक आई हैव 100 mangoes and console.log, and I'm checking whether digit is there or not. Search, and I'm giving pattern like this, D plus. कितने occurrences of digit? One or more. Star लिखा तो zero or more. Star का मीनिंग है zero or more occurrences. प्लस का मीनिंग है one or more occurrences. क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है exactly zero or one. एक तो exactly zero occurrence और one, no occurrence और one, not more than that. नंबर लिखा डायरेक्टली इसके अंदर ब्रैकेट में, तो exactly उतने ही. कितने डिजिट्स होने चाहिए? exactly 4. 4 कॉमा लिखा तो मिनिमम 4, और 4 से ज्यादा भी चल जाएगा. मिनिमम 4 चाहिए ही चाहिए, और ज्यादा भी हो सकता है. ऐसे ब्रैकेट लिखा और 5 लिखा तो मैक्सिमम 5, मिनिमम 0, 1, 2, 3, 4, बट मैक्स 5. तो ऐसे आप पैटर्न्स भी बिल्ड कर सकते हो. अब मैंने इधर प्लस लिखा है. ठीक है. तो इट विल चेक वेयर दैट पैटर्न इज मैचिंग. सी -d प्लस था ना? नहीं, ये d के लिए बैकस्लैश नहीं लिखा ना मैंने. ओनली d नहीं लिखना है, बैकस्लैश d लिखना है. बैकस्लैश d, सिर्फ d नहीं है. बैकस्लैश d लिखोगे तब वो डिजिट रिप्रेजेंट होगा. ठीक है. दैट वाज माय रॉन्ग. 7. तो बैकस्लैश डी डिजिट, एंड कितने अकरेंस डिजिट के? वन और मोर. तो वो कौन से प्लेस पे मैच हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे. गेटिंग? एंड अगर यहां मैंने एग्जैक्टली कुछ दिया रहता था, ब्रेस ब्रैकेट 4 ओनली, तो इट वोंट मैच. एग्जैक्ट 4 डिजिट्स कहीं भी नहीं है. और इसमें अगर मैंने लिखा आई हैव 1005 मैंगोस, अब वो मैच हो रहा है, तो इट विल गिव यू 7. गेटिंग? अब जैसे अगर स्ट्रिंग में मुझे पहला वॉवल किधर है वो चाहिए रहेगा,
तो console.log str.search, ठीक है, and you can give the class of vowels a e I o u. vowels a e I o u से बनता है, और ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक चाहिए रहेगा तो स्क्वायर में लिखने का। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये क्लास ऑफ कैरेक्टर्स बना, इसमें से कोई भी एक, ठीक है। अब वो मैच करेगा, तो अब इनमें से कोई भी एक जहां रहेगा वो पोजीशन देगा। 3 पे आता है देखो। एंड इसमें अगर इग्नोर केस चाहिए रहेगा तो यू कैन गिव आई ओवर हियर। गेटिंग ऑन? अगर अज्यूम करो ये सेंटेंस मैंने पूरा कैपिटल में लिखा है, आई हैव 1005 मैंगोस, एंड मैं चेक कर रहा हूं इसमें पहला वॉवल किधर है, तो भी वो -1 ही देगा। क्यों? बिकॉज ये केस सेंसिटिव लेगा ना, तो केस इग्नोर करना है तो इसके बाद आई लिखो। सी, तो इग्नोर किया उसने केस, तो ए ई आई ओ यू, तो आई पहले मिल रहा है ना। गेटिंग ऑन? वेरएज प्रीवियसली जब तो उसने ए लिया था, तब वो स्मॉल में था ना, आई कैपिटल था, तो ए के लिए लिया था, तो 0 1 2 3 पोजीशन दिया था। गेटिंग? तो ऐसे वो पैटर्न मैचिंग कर सकते हो, ठीक है, राइट। देन और भी सर्च फंक्शंस है, लाइक इंक्लूड, इंक्लूड्स, बट इसका सिर्फ रिटर्न वैल्यू ट्रू या फॉल्स रहता है। मीन्स इट विल सर्च वन स्ट्रिंग इनसाइड अनदर, and it will just check whether that one string is there in the other string or no. If it is, it will return true, otherwise false. Means ये position नहीं return करता है, ये just confirm कर रहा है कि whether s2 is there in s1 or no. Yes, it will return true. No, it will return false. Okay. Checks if string contains a substring. Case sensitive है, याद रखना। ऐसे string dot includes and search string. So it will check whether this search string is there in this string or no. So if this search string is present in this string, it will return true, otherwise false. इंडेक्स ऑफ क्या करता है? सर्च करता है बट पोजीशन लाके देता है। एब्सेंट है तो -1, प्रेजेंट है तो पोजीशन, ये जस्ट ट्रू या फॉल्स लाके देगा। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट डूइंग द सर्च फ्रॉम सम पर्टिकुलर पोजीशन, तो वो स्टार्ट पोजीशन भी दे सकते हो, ठीक है। ओके, देखो अभी एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड, I'm checking whether that word world is there in str or not. Yes, world is there, therefore true. But when I wrote double quote world and W small, so in that case it is giving false because it is case sensitive. तो world का W small है और इसमें capital है। Here you are trying to search hello in str, but the search is starting from 1. तो 1 onwards आगे hello नहीं है ना, इसलिए false आता है, right? And if you are searching any empty string, they say it is always present. Empty string is always present in any string. Therefore, you get true. Okay? Applications अगर आते हैं किसी रियल प्रोग्राम्स में अगर यूज करना है, देखो जैसे ये ईमेल है और उसमें जस्ट कंफर्म करना है कि डॉट एंड एट द रेट है या नहीं, वेदर एट द रेट इज प्रेजेंट, डॉट इज प्रेजेंट और नो। So you can check email dot includes at the rate and email dot includes dot. If both are coming true means both are present. Getting? ये आप लोग इंडेक्स ऑफ से भी कर सकते हो। तो दोनों का इंडेक्स ऑफ चेक करो, फिर देखो दोनों का इंडेक्स ऑफ -1 नहीं है, फिर ये भी देखो कि एट द रेट का इंडेक्स ये डॉट के इंडेक्स से कम है, मीन्स कंफर्म है कि एट द रेट ये डॉट के पहले ही आया है। अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें जस्ट चेक कर रहा है कि वेदर एट द रेट इज देयर इन ईमेल and dot is there in email. If both are true, it is just giving a message. ठीक है? तो includes का सिर्फ इतना ही खासियत है इंडेक्स ऑफ एंड इंक्लूड में, इट इज जस्ट रिटर्निंग ट्रू और false.
ठीक है, hello world and console dot log s dot includes and world. So it is just going to check whether world is there in S or no. So it is there, therefore true. And यही अगर W small लिया रहता था, so it will give false because case sensitive है. ठीक है? And search कहाँ से करना है वो position भी आप दे सकते हो. Right? Then there are some search functions only, और भी थोड़े search functions है. But in this case, it will just try to match in the beginning. Okay, it will check whether S1 is starting with S2 or no. ये हम लोग ऐसे सब कंसेप्ट एसक्यूएल क्वेरीज में भी करते हैं इन वेयर क्लॉज लाइक ऑपरेटर से भी चेक करते हैं. Getting? It is just going to check whether S2 is there in the beginning of S1, or other way, if you are just reading it like a sentence, it will check whether S1 is starting with S2. So if S1 starts with S2, true, otherwise false. Okay, that's simple. So checks if string starts with specified characters. देखो यहाँ string dot starts with search string. So if your string is starting with this search string, it will give you true. If the string doesn't start with this search string, false. Now, if you want to check that starts with from some particular position, that also you can give. Okay, and this is your original string. Then you're giving some position, and then from that position, whether it starts with. Now it will check this search string where from that position. From that position, does it begin with this search string? And if you don't give position, then in the beginning only it will check whether this search string is there or not. Okay? See. So str dot starts with hello. So does the string starts with hello? Yes, therefore true. Does it start with world? No, therefore false. But here see what you are doing, you are checking starts with world, but from sixth position. So from sixth position, does it start with world? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So is your string starting with world from sixth position? Yes. सिक्स्थ पोजीशन से वर्ल्ड से शुरू हो रहा है इसलिए ट्रू आया. ठीक है, जैसे अगर एक कोई पूरा वेबसाइट का यूआरएल है तो हमें कंफर्म करना है कि ये यूआरएल में बिगिनिंग में ये एग्जैक्टली है कि नहीं, https:// वो पूरा यूआरएल इससे शुरू होना ही चाहिए. Getting? So if you want to confirm whether it is starting with this or no, you can use like this url dot starts with. If this answer come true, you're just giving message secure connection. Understanding? Okay. Now, similar to starts with, there is ends with also. Now, in this only, I'll give s dot starts with, and I'm checking whether it is starting with hello. So it is giving true. And as I said, if you try to check whether the string is starting with world, so obviously it is not starting with world, it will give false. But if I give start position 6, then from 6 does it start with world? Yes. 6 से world से शुरू हो रहा है? Yes. इसलिए true आता है. ठीक है, अभी जैसे starts with है वैसे ends with भी है. Ends with. It is going to check whether the string is ending with the given string. S1 dot ends with S2. So it will check whether this S1 is ending with S2. If it is ending with S2, true. Otherwise, false. Here also you can give position.
बट इन दैट केस फ्रॉम देयर इट विल चेक एंड। अगर पोजीशन दिया है तो वहां से स्टार्ट हो रहा है नहीं देखेगा, वहां से पीछे देखेगा, जो पोजीशन दिया है उसके बैक देखेगा कि वो एंड हो रहा है कि नहीं S2 से। ठीक है, तो चेक्स इफ स्ट्रिंग एंड्स विथ स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स। सिंटैक्स इस तरह से, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ सर्च स्ट्रिंग एंड देन द लेंथ। ये लेंथ क्या इंडिकेट करेगा समझ में आया ना? जो स्ट्रिंग पोजीशन का दिया लेंथ। ना, तो इट विल टेक दैट लेंथ एंड वो लेंथ से आगे, आगे मीन्स बैकवर्ड, एंड हो रहा है कि नहीं। तो इफ यू गिव लेंथ इट विल टेक ओनली दैट मेनी कैरेक्टर्स। जितना लेंथ दिया है, जितना भी लेंथ दिया है उतने कैरेक्टर्स, एंड उतने कैरेक्टर्स एंड किससे हो रहा है? सर्च स्ट्रिंग, right? And when length is not given, तो directly last it will check whether it is ending with that search string. See, hello world ends with world. Does it end with world? Yes, true. Then ends with hello. Does it end with hello? No, false. But ends with hello and the length is 5. तो किधर तक जाएगा? ये लेंथ कंसिडर करो या पोजीशन। पोजीशन भी अगर लिया ना तो 0 1 2 3 4 एंड 5। पोजीशन लिया तो वो एक्सक्लूड करेगा 5, उसके पहले तक जितना भी है। वो एंड किससे होता है कि नहीं देखेगा? हेलो से। तो बताओ 0 1 2 3 4, तो 4 से पीछे अगर दिखते हैं तो इज इट एंडिंग विथ हेलो? यस, 0 1 2 3 4 है ना, हेलो ही है वहां, इसलिए ट्रू आता है। गेटिंग? तो कभी जैसे कुछ फाइल्स पे काम करना है तो कंफर्म करना है कि वो फाइल का एक्सटेंशन वही है, वो एक्सटेंशन की फाइल रहेगी तो ही आगे काम करना है। तो यू कैन मेक यूज ऑफ सच कोड्स, यानी एंड्स विथ का यूज कर सकते हो वहां। तो फाइल नेम एंड्स विथ डॉट पीडीएफ, देन गो अहेड। ठीक है, मींस आपको कंफर्म चाहिए कि वो पीडीएफ रहेगी तो ही मैं आगे काम करूंगा, अदरवाइज इनवैलिड फॉर्मेट करके मैसेज देना है। ठीक है, तो एंड्स विथ चेक कर सकते हो लाइक दिस। और ये लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? एंड्स विथ और ये लेंथ, लेंथ अगर दिया है तो उतने कैरेक्टर्स एंड हो रहे कि नहीं देखेगा। अब सपोज ये लेंथ मैंने 15 दिया रहेगा, तो इट विल टेक 15 कैरेक्टर्स। 15 कैरेक्टर्स में 0 to 14, 0 से लेके 14, एंड फिर देखेगा 14 से पीछे एंड इससे हो रहा है कि नहीं। तो हमने 5 दिया था, तो 5 मीन 0 to 4, 0 1 2 3 4। तो 4 and 4 का बैक, 4 से रिवर्स, इज इट एंडिंग विथ हेलो? यस, HELLO है, इसलिए ट्रू आया। राइट? तो इसमें अभी ट्राई करके देखो, कंसोल डॉट लॉग s डॉट एंड्स विथ वर्ल्ड, it is giving true, right? And if you write console dot log s dot ends with hello, it will give false, क्योंकि वो एंटायर स्ट्रिंग एंड हो रहा है हेलो के साथ, ये देख लेगा। तो इज द एंटायर स्ट्रिंग एंडिंग विथ हेलो? नो, therefore false. बट इफ आई गिव लेंथ, तो जितना लेंथ दिया है उतना स्ट्रिंग एंड हो रहा है कि नहीं देखेगा। ठीक है, एंड्स विथ हेलो एंड द लेंथ इज 5, तो कितने लेंथ की स्ट्रिंग कंसिडर करेगा? ओनली 5 लेंथ। एंड फिर वो 5 लेंथ की स्ट्रिंग हेलो से एंड हो रही है कि नहीं? तो यस, वो 5 लेंथ की स्ट्रिंग ये है और ये स्ट्रिंग हो रही है हेलो से एंड, यस, देखो ट्रू ये गेट। सी, नेक्स्ट ट्रू आ गया। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट, कंसेप्ट समझ में है। तो सर्च की कैटेगरी में याद रखना है, इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है, सर्च है जो रेगुलर एक्सप्रेशन पे चलता है, इंक्लूड्स है, स्टार्ट्स विथ है, एंड्स विथ है। राइट? तो जनरली लाइक इंटरव्यूज में पूछा कि
सर्चिंग के स्ट्रिंग के एटलीस्ट दो फंक्शंस बताओ, तो क्विकली याद आना चाहिए। एक तो इंडेक्स ऑफ, एक तो लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च, देन includes and starts with, ends with. Okay. Now next is, if you want part of a string, it is not going to delete it from the original. It will just give you copy of that much part. This is your original string. Okay. And from that, you want some part of that string from one position till another. तो वन पोजीशन से अनदर हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, अनदर इंक्लूसिव नहीं होता है, उसके जस्ट पहले तक। तो एक पोजीशन से लेके नेक्स्ट पोजीशन तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसकी एक कॉपी स्ट्रिंग बनेगी। ओरिजिनल में से कुछ डिलीट नहीं करेगा, इंसर्ट नहीं। व्हाई? बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इट डजंट अलाउ यू इन प्लेस चेंजेस। तो वन पोजीशन टिल अनदर पोजीशन, as many characters are there, it will take that characters and create a new copy string and give it to you. Okay. बट ये एक्सट्रैक्ट करने के बहुत अलग अलग वेज है, वो बताता हूँ। राइट, कुछ फंक्शंस डेप्रिकेट में ओल्ड हो गए, उसके जगह पे उनका कहना है कि ये वाला यूज करो। फिर कुछ नए जावास्क्रिप्ट नए वर्जन्स ने भी कुछ ऐड किए। वी विल लर्न ऑल देम वन बाय वन। पहला है स्लाइस। उसका नेम ही है ना, देखो नॉर्मल इंग्लिश में भी जब हम स्लाइस बोलते हैं तो स्लाइस इज व्हाट, पार्ट ऑफ समथिंग ना। लाइक बर्थडे पार्टी में पूरा केक रखा रहता है, तो यू जस्ट टेक द स्लाइस फ्रॉम दैट। बट उसमें से इतना होता है कि वो स्लाइस जब निकालते हो तो वो ओरिजिनल केक में से निकल जाता है। यहाँ ओरिजिनल स्ट्रिंग में रहेगा, उतने पार्ट का कॉपी आपको मिलेगा, इट विल नॉट डिलीट इट। या जैसे ब्रेड का लॉफ होता है, ब्रेड का लॉफ समझा ना, एक पूरा ब्रेड, तो उसमें से एक स्लाइस निकाल लेते हो आप लोग, तो पार्ट निकाल रहे हो ना, दो स्लाइस लिया तो यू आर टेकिंग टू पार्ट्स ऑफ इट। सेम वे अभी स्लाइस को आपको स्टार्ट एंड देना पड़ेगा, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। ओके, सो एक्सट्रैक्ट्स अ सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग and returns it as a new string. अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग में से एक पार्ट निकाल के देगा और वो पार्ट का कॉपी ला के देगा। इट इज नॉट गोइंग टू मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, सिंटैक्स देखो ऐसे, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। एंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, एंड इंडेक्स इंक्लूसिव नहीं, ऑलवेज एक्सक्लूसिव। मींस मैंने 5,9 दिया है, तो इट विल गो फ्रॉम 5, 6, 7, 8। ओके, एग्जाम्पल्स देखो, few examples we'll see। पहले देखो स्लाइस 0,5, तो मैंने कहा ना 5 एक्सक्लूसिव है, तो 0 से 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। हु इज देयर? हेलो। अभी अगर आपने सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स दिया बट एंड इंडेक्स नहीं दिया, यू आर गिविंग स्टार्ट इंडेक्स बट यू आर नॉट गिविंग एंड इंडेक्स, तो इट विल गो टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जितना भी बचा हुआ है उस पोजीशन से। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6। हु इज 6? W। एंड एंड इंडेक्स नहीं दिया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर टिल द एंड, जितना भी है सब कुछ देने वाला है। तो बचा हुआ क्या है? वर्ल्ड है, वो आ गया। नेगेटिव इंडेक्सेस भी दे सकते हो, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स दिया तो इट स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम द एंड, तो -1, -2, -3, -4, -5। तो -5 पे कौन आ रहा है? W, ठीक है। एंड एंड इंडेक्स दिया नहीं है, एज एंड इंडेक्स नहीं दिया तो वहां से पूरा बचा हुआ स्ट्रिंग अगेन वर्ल्ड आता है, करेक्ट। एंड जब स्टार्ट एंड एंड दिया है बट दोनों निगेटिव दिए, तो जस्ट चेक WORLD, दिस इज -1, -2, -3, -4, -5। तो स्टार्ट कहां से होगा? -5 से, एंड जाने वाला किधर है? -1 तक। बट तुम्हें पता है कि जब दो इंडेक्सेस देते हैं तो सेकंड हमेशा क्या होता है? एक्सक्लूसिव। सेकंड कभी भी इंक्लूसिव नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग गाइस? जैसे इस केस में भी 0 एंड 5, 5 एक्सक्लूसिव है, 0 से 4 तक ही गया। तो यहां भी देखो -5, -4, -3, -2, इधर तक ही WORL है, राइट।
एंड दोनों पॉजिटिव दिए, देखो 6 to 11। तो स्टार्ट कहां से होगा? WORLD, क्योंकि ये 6 है, 7, 8, 9 एंड 10, 11 एक्सक्लूसिव मैंने बताया ना। गेटिंग? तो इट गिव्स यू वर्ल्ड। गेटिंग गाइस? हाँ, ये ओके। एक्सक्लूसिव जो है यहाँ ये जस्ट बाय एक डिफॉल्ट होता है। एग्जांपल लिया है, देखो कि ये आपका ईमेल एड्रेस है और उसमें से मुझे सिर्फ ये डोमेन नेम चाहिए। ये जो example.com होता है ना, ये डोमेन है, ठीक है? तो ये जो डोमेन पार्ट है उतना पार्ट चाहिए। तो आपने क्या किया? एट द रेट का पोजीशन ढूंढा, राइट गाइस? यूजर एट द रेट example.com, किसका पोजीशन ढूंढा? एट द रेट का, यूजिंग इंडेक्स ऑफ email डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट। आगे एट द रेट का पोजीशन +1 लिखा, तो अगले कैरेक्टर से शुरू करेगा एंड किधर तक जाएगा? टिल द एंड, क्योंकि स्लाइस को आपने सिर्फ स्टार्ट दिया, एंड दिया नहीं। अंडरस्टैंडिंग? तो एट द रेट के बाद से शुरू करेगा एंड टिल द एंड। तो ये पूरा example.com आएगा डोमेन नेम दैट यू आर प्रिंटिंग। ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। स्लाइस का कंसेप्ट क्लियर है? देखो, कंसोल डॉट लॉग, मैं इधर लिख रहा हूं s.slice, फिर यहां मैंने लिखा है लर्न विथ अजीत मोरे @gmail.com। ओके, ये मेरी स्ट्रिंग है। तो इसमें मैं ढूंढ रहा हूं इंडेक्स ऑफ, नहीं एस, एक गलती किया, ये पूरा स्ट्रिंग किसी में रखना चाहिए था। तो लेट email equal to this thing, okay? And then I was supposed to write email dot slice, एंड ईमेल के अंदर ही मैं किसका पोजीशन ढूंढ रहा हूं? इंडेक्स ऑफ एट द रेट। बट एट द रेट का पोजीशन आया तो मैं उसमें +1 कर रहा हूं, तो आई एम जस्ट गोइंग वन पोजीशन अहेड। तो एक पोजीशन अहेड में जी पे आ गए और वहां से पूरा बचा हुआ, क्योंकि आपने एंड पोजीशन नहीं दिया है। गेटिंग? तो डज इट गिव यू gmail.com? ठीक है? ऐसे स्लाइसिंग अलग अलग नेगेटिव्स पे ट्राई करके देखो। एक ट्राई करके देखना है कि अगर पोजीशंस इनवैलिड दिए तो कैसे आता है। आई एम राइटिंग email dot slice, and if I give position 20 comma 25, okay, see 20 comma 25 था शायद, तो कुछ और दे देता हूँ, 40 comma 45, okay? It gives a empty string, कुछ एरर नहीं आएगा, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन से इनवैलिड है। जब पोजीशन इनवैलिड होता है तो इट जस्ट गिव्स यू व्हाट? When the position is invalid, it will just give you empty string. No error or anything. It will just give you empty string. Right? तो कॉम्बिनेशंस क्लियर है ना कि स्टार्ट दिया एंड एंड नहीं, तो वहां से शुरू करके एंड तक जाएगा। नेगेटिव्स दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है। ओके, इसमें तो मेरे को थोड़ा सा ये स्लाइस का कंसेप्ट क्लियर है। देन कम्स सबस्ट्रिंग। Substring is like slice only, but I think वो indexes negative allow नहीं करता है शायद। See, similar to slice, but doesn't accept negative indexes. इसमें negative indexing का टेक्निक नहीं, बाकी सब सिमिलर है, सेम ही है। स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, ओके। स्टार्ट से लेके एंड तक का जितना भी पार्ट बनता है उसका कॉपी लाके देगा। बट हियर यू कैनॉट मेंशन नेगेटिव इंडेक्सेस, ओके। सी, सबस्ट्रिंग 0,5, सेम, 0 से लेके 5, 5 एक्सक्लूसिव, 5 एक्सक्लूसिव है, रिमेंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4, हेलो। स्टार्ट 6 से किया, दैट इज W, एंड नहीं दिया तो वहां से एंड तक, ओके। एंड 6,11, तो 6
पे W है, 11 D के बाद है, तो D तक ही आएगा। 11 एक्सक्लूसिव है ना, तो 10 तक ही रुकेगा। 6, 7, 8, 9, 10। तो 6, 7, हेलो 8, 9, 10 इतना हेलो पार्ट ला के दिया। हेलो। ओके, ये जस्ट कुछ चीजें ध्यान में रखो। अगर आपने गलती से स्टार्ट एंड से ज्यादा दिया, वो खुद ही उसको स्वैप कर देता है। इट स्वैप्स देम। गेटिंग? Actually, you want from 0 to 5, but by mistake you gave 5, 0. It is internally swapped. Okay? And if you give negative index, it doesn't give any error. It automatically treats them as 0. तो ये पॉइंट्स याद रखो सबस्ट्रिंग के केस में। अदरवाइज नॉर्मल स्लाइस की जैसे ही काम कर रहा है। जब तक पॉजिटिव दे रहे हो ना, तो स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग बिहेव सेम। नेगेटिव दिया तो वो ऑटोमेटिक 0 ट्रीट करेगा। एंड ये एक खासियत है कि अगर स्टार्ट ये एंड से ज्यादा है, तो उनको स्वैप करता है। ये स्टार्ट बनेगा और ये एंड बनेगा। ठीक है? तो कंसोल डॉट लॉग एंड सपोज आई एम राइटिंग email डॉट सबस्ट्रिंग। ठीक है? you're also email डॉट इंडेक्स ऑफ। सपोज मैं डॉट देता हूं, मुझे सिर्फ वो डॉट कॉम है या डॉट, तो वो डॉट के बाद का क्या वो चाहिए, तो यहां जस्ट +1 दे देता हूं। ओके, इट इज जस्ट रिटर्निंग कॉम, राइट? एंड सपोज console dot log and you are giving s dot substring and 0 5,0 हो गया, तो वो ऑटोमेटिक 0,5 करके हेलो देता है ना। ये s अपना ओरिजिनल था, तो 5,0 हो गया, बट उसको 0,5 लेगा। 5 एक्सक्लूसिव होता है, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया, तो इट विल गिव यू ओनली हेलो। ठीक है? एंड नेगेटिव्स अगर दिए भी, कंसोल डॉट लॉग s dot substring and I'm giving -5, it will just simply make it 0. See, 0 बना देता है, एंड 0 बना है तो बिगिनिंग से ही शुरू किया है, पूरा स्ट्रिंग ला के दिया। गेटिंग? तो ऐसे वेरिएशंस है, वो ट्राई करो। फिर एक सब एसटीआर भी है। अभी ये जो सब एसटीआर है, ये इनका कहना है ये डेप्रिकेट हो रहा है। बेटर प्रिफर यूजिंग स्लाइस, और डेप्रिकेट में समझा ना, आउटडेट हो जाएगा। मीन्स इन द नेक्स्ट मे बी आगे के कुछ वर्जन्स में ये निकाल भी दे देंगे। मे बी इन करंट वर्जन आप यूज कर पा रहे रहेंगे, बट आगे के वर्जन्स में चांसेस है ये निकल भी जाए। इसमें स्टार्ट एंड लेंथ देते हैं गेस। मैंने स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स नहीं देना है। स्टार्ट इंडेक्स एंड यहां से कितने कैरेक्टर्स, दैट इज लेंथ। You have to give the start index, and from that start index how many characters। उसमें कैसे इंडेक्स है दोनों, ये रहेगा ना। तो जैसे यहाँ 2,2 लिखा, तो उस केस में 2 से 2 तक ऐसे हो गया। यहाँ 2 से 2 कैरेक्टर्स, 2 से 2 कैरेक्टर्स, तो 2 and 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है? सी, तो extracts character from a string starting at a specified position। सी, लेंथ होता है यहाँ, तो स्टार्ट देना है और लेंथ देना है। स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स नहीं है, इसमें एंड इंडेक्स नहीं है। एंड क्या रहेगा, इस स्टार्ट में इतना लेंथ ऐड किया तो वो एंड इंडेक्स बन जाएगा। स्टार्ट से कितने कैरेक्टर्स, वो इधर बताना है। अंडरस्टैंडिंग? देखो इधर सबस्ट्रिंग 0,5, तो ये बता रहा है 0 से कितने कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स। तो 0 से 5 कैरेक्टर्स मीन्स हेलो। यहां देखो 6,5 लिखा है,
प्रीवियस दो फंक्शंस में स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, तो एंड इंडेक्स ये स्टार्ट से ज्यादा ही रहेगा, तो ये एंड इंडेक्स नहीं है, ये लेंथ है। तो कहां से शुरू करेगा? 6। ओके, एंड 6 से कितने कैरेक्टर्स? 5 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5। 6 से कितने कैरेक्टर्स? 5 कैरेक्टर्स। तो 6 से 5 कैरेक्टर्स क्या बनता है? वर्ल्ड, इसलिए वर्ल्ड आए। एंड जब लेंथ नहीं देते हो तो टिल द एंड। लेंथ अगर नहीं दिया है तो जहां से शुरू किया है वहां से बचा हुआ स्ट्रिंग, तो शुरू 6 से किया तो वहां से रिमेनिंग स्ट्रिंग। गेटिंग? एंड स्टार्ट नेगेटिव अलाउड है यहाँ, बट लेंथ पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, देखो स्टार्ट कहां से किया? -5, तो -1 -2 -3 -4 -5। -5 पे कौन आया? W। और वहां से लेंथ कितना? 5, तो वहां से 5 कैरेक्टर्स। ये लेंथ है, प्लीज रिमेंबर। प्रीवियस दोनों फंक्शन में स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स था, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। यहां स्टार्ट इंडेक्स एंड लेंथ है, लेंथ नहीं दिया है तो रिमेनिंग स्ट्रिंग। एंड यहाँ का यूज स्लाइस इंस्टेड एज sub str is deprecated, means it's outdated, मे बी ये वर्जन में है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। है sub str, currently it is available. I'm writing 6,5। 6,5 मीन समझा ना? 6 से 5 कैरेक्टर्स, 6 से 5 कैरेक्टर्स वर्ल्ड आ गया। गेटिंग? एंड स्टार्ट नेगेटिव भी दे सकते हो, s डॉट सब str। स्टार्ट मैंने नेगेटिव दिया है तो मैं मेरा वैल्यू क्या आएगा? -6 सपोज, एंड लेंथ में 5 दे रहा हूं। -6 मीन्स यहां आएगा -1 -2 -3 -4 -5, तो -6 नहीं, -5। एंड लेंथ कितना दिया है? 5, तो -5 से 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, इट इज वर्ल्ड। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस है इन फंक्शंस में, तो कभी कंपैरिजंस वगैरह में पूछ लिया कि बेसिक फर्क क्या है, तो याद रहना चाहिए कि स्लाइस allows negative indexes also, substring doesn't allow. In substring, if you give negative also, it will automatically make it 0. And substr takes start index but not end index. It takes it as a length. Start index और length लेता है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक डिफरेंसेस मुझे लगता है याद रहेगा। तो इसमें दो लेंथ ही राइट? रहेगा, जो ओके, पांच तो जस्ट कंफर्मेशन दोगे क्विक? हेलो हेलो दिस टाइम इज देयर। सूर्य से पूछो क्या कितने बजे पानी चलाता है? धोखा दे देता है, तो लोग धोखा कर देते Okay, हैं। धोखा then देता है moving to तो some धोखा देते string modification. Now, modification means हैं। it's not going to do modification in the 2000 original की string. तो करना। It will give you a new string. But modification, like कुछ insert करना है, कुछ replace करना है, कुछ part delete करना है. But delete भी हुआ तो भी original string से delete नहीं, new string लाके देगा. ठीक है? तो उसमें एक है replace, right? तो replace what and with what, किसको और किससे replace करना. ओके, तो वो दोनों चीजें देना पड़ेगा। रिप्लेसेस फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग और अ पैटर्न, यहां पैटर्न भी चल जाएगा। तो इट विल सर्च दैट पैटर्न एंड इफ द पैटर्न इज मैच इट विल रिप्लेस इट विद समथिंग। गेटिंग? यहां S1 अपना मेन स्ट्रिंग है, रिप्लेस है, फिर क्या ढूंढने का है वो बताना है। तो वो ढूंढना क्या है? वो सबस्ट्रिंग भी हो सकता है, पैटर्न भी हो सकता है।
एंड किससे रिप्लेस करना है, ये S3. So this S2 can be a substring also or a pattern. So it will search the substring or the pattern first occurrence in S1. And if found, it is going to replace it with S3. उसको S3 से replace कर देगा. And फिर वो जो modified string है वो return. Original string modify नहीं होगी. It is going to return you a new string. Getting? See, pattern इस तरह से. String dot replace, search, क्या search करना है and किससे replace करना है. ये search जो कर रहे हो वो एक substring भी हो सकता है, pattern भी हो सकता है. अभी pattern हमने आज ही search function में देखा है. So it will check that pattern. उसको ये new value से replace कर देगा. ठीक है? ओके? देखो, hello with hi. तो क्या करेगा, आपके string में पहला hello का occurrence जहां भी है वो hi से replace. एंड मॉडिफाइड स्ट्रिंग लाके देगा. इट विल नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल. तो पहला अकरेंस हेलो का यही मिलता है तो उसको हाई. तो हाई वर्ड हेलो जावास्क्रिप्ट वैसे ही रहेगा. करेक्ट. पैटर्न भी दे सकते हो. तो आई कैन गिव पैटर्न लाइक दिस स्लैश हेलो. अब देखो ये हेलो स्मॉल में लिखा है बट यहाँ आई लिखा है. आई मीन्स इग्नोर केस. इग्नोर केस और इनसेंसिटिव. तो वेरेवर हेलो फाउंड रिप्लेस विथ हाई इररेस्पेक्टिव ऑफ द केस. तो यहां भी हेलो पहले प्लेस पे ही है तो वो रिप्लेस हुआ. ठीक है. इस केस में देखो पैटर्न कैसे है कि मुझे लास्ट के 4 छोड़ के, लास्ट का 4 छोड़ के बाकी सबको स्टार से रिप्लेस करना है. गेटिंग? तो आई वांट टू रिप्लेस ऑल द डिजिट्स विथ स्टार एक्सेप्ट 4. तो ये पैटर्न बिल्ड किया है. देखो बिगिनिंग में क्या चाहिए, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, एनी नंबर. एंड G इज फॉर ग्लोबल. ग्लोबल मीन्स पूरे स्ट्रिंग है. ग्लोबल इंडिकेट्स द एंटायर स्ट्रिंग. तो ये पैटर्न क्या बोलता है कि बिगिनिंग में कितने भी डिजिट्स एंड एक्सेप्ट लास्ट 4 डिजिट. देखो इधर ब्रैकेट में 4 लिखा है, 4. तो एग्जैक्टली हाउ मेनी डिजिट्स, 4. ओके. बट वी आर सेइंग दैट प्लीज एक्सक्लूड दैट लास्ट 4 एंड ऑल यू रिप्लेस विथ स्टार. यू गेट दिस. तो बहुत जगह पे होता है ऐसे, देखा रहेगा कि आपके व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप बोलो या फिर एसएमएस में मैसेजेस आते हैं बैंक के कि आपके ये कार्ड पे ये लोन अवेलेबल है या इसका इतना है. तो उसमें वो पूरा कार्ड प्रिंट नहीं करता है, वो लास्ट के 4 डिजिट्स ही सिर्फ दिखाता है. द एंटायर इट डजंट शो. गेटिंग? इवन इफ यू गो टू योर बैंकिंग एप्लीकेशंस आल्सो ना, वो आपका पूरा अकाउंट नंबर नहीं दिखाता है, लास्ट के 4 डिजिट ही दिखाएगा. बाकी का वो पूरा जो 16 डिजिट 12 डिजिट का अकाउंट नंबर है वो पूरा हाइडेड रहता है. गेटिंग? So you can do it this way also. Okay, so replace always replaces the first occurrence only. Yeah, remember, replace replaces only the first occurrence. And if you want to replace all the occurrences, then you have to use the replace all. Getting? So replaces all occurrences of substring or pattern. इसमें सिर्फ फर्क इतना है. Getting? अब ये सर्च वैल्यू क्या रहेगा, substring या pattern. Search value can be a substring or it can be a pattern, but it will match that pattern or that substring, replace it with new value, but all patterns or all substrings, not only the first one. सिर्फ पहला वाला नहीं, सारे रिप्लेस कर देगा. गेटिंग? तो देखो ये जैसे हेलो वर्ल्ड हेलो जावास्क्रिप्ट है, यहां लिखा str replace all hello with hi. तो हेलो with hi जब लिखा है तो what it will do, it is just not going to replace the first hello, all. Getting? And same regular expression से भी कर सकते हैं. ये G इंडिकेट करता है कि पूरे इसमें ग्लोबल, it indicates G means global means complete you have to consider. Same thing. ये वाले केस में हम बोल रहे हैं कि जितने भी स्पेसेस है वो निकाल दो. देखो यू आर सेइंग रिप्लेस स्पेसेस विद empty string and spaces.
So is it going to remove all the spaces from the string and give you the modified string? Okay, देखो Yes. ये एक simple example देता हूँ. Let str1, here I'm giving h, e, या आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, बहुत सारे स्पेसेस है, फिर हेलो, फिर बहुत सारे स्पेसेस है, वर्ल्ड, WO, बहुत स्पेस RLD, एक्सक्लेमेशन, यहाँ बहुत स्पेसेस है, सब निकाल के क्या रहना चाहिए, हेलो वर्ल्ड. गेटिंग कंप्लीट. तो प्रिंट console dot log str1 dot replace all, if what space and with what empty string. स्पेस को किससे रिप्लेस करो, एम्प्टी स्ट्रिंग से. यहां भी रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउड है. सी, तो जितने भी स्पेसेस थे, ये बिगिनिंग में थे, बीच में थे, एंड में थे, सब निकाल दिए. एंड फिर सिर्फ क्या रह गया, हेलो वर्ल्ड. करेक्ट. तो इस तरह से रिप्लेस ऑल you can make use of. Then we have trim. Trim removes the white spaces from the beginning and the end. Begin and end से वो white spaces निकालेगा. So remove white spaces from both ends of a string. String dot trim. See, बीच के नहीं निकालेगा, only from both the end. तो देखो यहाँ spaces है, यहाँ spaces है, str और trim दोनों end से space निकल गए. अब white spaces में new lines, tabs ये भी consider होते हैं guys. In white spaces, tabs and new lines are also considered. Therefore, see, when I write multi-space dot trim, it will remove these tabs as well. Getting? अब जैसे ये यूजर ने एंटर किया हुआ ईमेल है, बट उसमें अननेसेसरी बिगिनिंग एंड में कुछ स्पेसेस है, तो यू कैन रिमूव इट. यूजर इनपुट डॉट ट्रिम, इट हैज रिमूव्ड स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड. गेटिंग? राइट. एंड अगर आपको सिर्फ बिगिनिंग से ट्रिम करना है या एंड से ट्रिम करना है, ओनली ट्रिमिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, तो दे हैव गिवन ट्रिम फर्स्ट और ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम लेफ्ट. दोनों कोई भी यूज, वो एलियासेस है, एक दूसरे के एलियास फंक्शन है. ये वाला ही जो फंक्शन, ये वाला ही स्ट्रिंग जो है, इसके ऊपर भी चेक करके देखो. console.log and you're writing str1.trim and nothing you're passing. See, तो उसमें बिगिन एंड एंड, बीच के जो स्पेसेस जो रह गए, बट एंड के स्पेसेस बिगिन के स्पेस निकाल दिए. ठीक है. वैसे ओनली बिगिनिंग का निकालना रहेगा. तो ट्रिम स्टार्ट लिखो या ट्रिम लेफ्ट लिखो, दोनों में से कोई भी चलेगा. Anything will do. Trim start will also do or trim left will also do. Okay. So removes white spaces from the beginning of a string. They are aliases. Alias समझ में है ना? Alternate name है. एक ही काम कर रहे हैं दोनों. String dot trim start. See, ये ऐसी string है जिसमें दोनों साइड स्पेसेस है. ठीक है. तो अगर मैंने trim start लिखा तो it is only removing the space from the beginning. End वाला space नहीं. एंड दोनों एक दूसरे के एलियासेस है. एलियास मीनिंग समझ में आया ना? अल्टरनेटिव नेम टू ईच अदर. दोनों एक ही काम कर रहे हैं. तो जैसे ट्रिम स्टार्ट है, वैसे ट्रिम एंड भी है. तो ट्रिम एंड या ट्रिम राइट, ये भी अगेन एक दूसरे के एलियासेस है. तो राइट का स्पेस निकालना या एंड का स्पेस, तो इनको यूज करो. ट्रिम एंड, ट्रिम राइट removes white spaces from the end of a string. String dot trim end. See, now in this case end का स्पेस निकाला, बिगनिंग का रह गया. ठीक है. ओके, तो दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अभी फ्यू थोड़े से 2-3 फंक्शंस रह गए हैं, फिर स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा. देन वी हैव टू डाइव इनटू अरेज.